नमस्कार, मैं हूं नीलू। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। और देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा हथियार मास्क है, इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकले आप मास्क पहनकर निकले, क्योंकि हम बराबर ये कह रहे हैं और न्यूज 18 एक मुहिम भी चला रहा है, मास्क पहनो इंडिया। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और दूसरा ये मास्क जरूर पहने। We'll take questions one by one. Can I start with the news agency PTI? Mr. Sanjeev, if you can come in, please unmute Sanjeev ji. Yeah, thank you, Randeep ji. Morning, Rahul ji. I hope you're doing good. I'm okay. Yeah, Rahul ji, as you said, going by the current rate of vaccinations, it will take a long time for a majority population to get vaccinated. Where would that leave India in the wake of a third wave, which experts are predicting would come in the next 6 months? Would India continue to remain vulnerable and protected? Many experts have also said that India opened up vaccinations for adults too soon, and this derailed the ongoing drive for priority groups. Was this the right thing to do, as Congress had supported the opening up early? Look, I have spoken since February. I've been speaking to expert after expert after expert on corona, and I've been trying to understand what it is and how to deal with it. Please understand that if you allow 97% of people to be potential victims of corona, your vaccine will not work. Because by the time you have come to 10, 15, 20% vaccination, the virus will have mutated. It will have gone somewhere else. The disease that is attacked in the second wave is a different disease than the disease that attacked in the first wave. We are lucky right now that this second disease is still under the umbrella of the virus. The third disease or the fourth disease that comes might not be. And it might be a much more dangerous disease, as the second disease was much more dangerous disease than the first disease. They all call corona, but they behave differently. So what corona is doing, it is testing, it is dynamic, and it is moving, it's learning. And what we have to do is we have to stop the space for it to learn. You have to make sure that your vaccination numbers shoot up. If you do not vaccinate at a much more dramatic rate, your vaccination potentially will not work. And my understanding, and the understanding of experts who I've spoken to, is the current rate of vaccination, 3%, almost guarantees a third wave when the lockdown goes, which is completely unnecessary. Because if your vaccination was at 20, 30, 40, 50, 60%, you wouldn't have a third wave. You certainly wouldn't have a fourth wave and a fifth wave. Now, the problem is there is no strategy. तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पत्रकारों के सवाल का वर्चुअली जवाब दे रहे थे। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ाए जाएंगे बिजली के दाम। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिजली की दरें इस साल भी उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ाई जाएंगी। योगी सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है। कोरोना को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। पिछले साल भी बिजली के दाम नहीं बढ़े थे। इस वक्त की यह बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कोरोना को देखते हुए सरकार ने यहां पर यह फैसला किया है। पिछले साल भी बिजली के दाम नहीं बढ़े थे और इस साल भी बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। योगी सरकार ने यहां पर यह बड़ा फैसला लिया है। बिजली की दरें इस साल भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। जिस तरह से
पिछली साल बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई थी, ऐसा इस साल भी देखने को मिलेगा। और इस साल भी उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, यानी कि जो पहले से बिजली के दर चले आ रहे हैं, रेट चले आ रहे हैं, उसी पर आम जनता को बिजली मिलेगी। बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर के नियामक आयोग की तरफ से भी कई बार सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन यहां पर पिछली साल भी सरकार ने बिजली के दाम नहीं बढ़ाए थे और इस बार भी बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया है। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, कई बार नियामक आयोग कह चुका है कि बिजली के दाम रेट जो है वो बढ़ाइए, लेकिन सरकार आम जनता पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहती है। पिछली बार भी नहीं बढ़ाए और इस साल भी नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए अनुपम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले 3 साल से अगर देखा जाए तो ये तीसरा साल है जब सरकार ने इस मामले में बड़ी राहत दी है और इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे हैं उसमें एक बड़ी राहत दी जाए, वहीं दूसरी ओर चुनावी साल भी है ये, तो सरकार कम से कम ऐसे मौके पर बिजली के दाम बढ़ा करके कोई नेगेटिव संदेश नहीं देना चाहती है और इस लिहाज से भी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। हालांकि आपको याद होगा कि 2017 में सरकार बनने के बाद से 17 में और 18 में थोड़ा करके बिजली के रेट बढ़ाए गए थे, लेकिन उसके बाद 19, 20 और 2021 यानी कि तीसरा साल ये है जब इस मामले में कम से कम सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है और फिलहाल बिजली दरों में कोई भी इजाफा न करने का ऐलान किया है। इसके दूसरे मायने चुनाव से भी जोड़ के देखे जा रहे हैं, जहां पे बीजेपी सरकार हमेशा से आरोप लगाती रही है कि प्रदेश में महंगी बिजली खरीदती रही है सपा सरकार, जिसका खामियाजा इस सरकार को भी भुगतना पड़ा और जिसकी वजह से बड़े जो महंगे अनुबंध थे उसकी वजह से ही सरकार को 17 और 18 में बिजली की दरें बढ़ानी पड़ी। लेकिन फिलहाल 19 में, 20 में और 21 में अगर देखा जाए तो ये 3 साल ऐसे रहे जब सरकार ने बड़ी राहत दी है और इस बार भी कोरोना से जूझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही। अलीगढ़ में शराब कांड सामने आया है, जहां पर शराब पीने से मौत का दूसरा मामला सामने आ गया है। 3 लोगों की शराब पीने से दूसरी जगह पर मौत हुई है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे हुए हैं। कल शाम को एक ही गांव के 4 लोगों ने देसी शराब के ठेके से शराब खरीदी थी। दोनों ही घटनाओं में अलीगढ़ में अब शराब से मरने वालों की मौत का आंकड़ा 11 पहुंच गया है। वहीं सीएम योगी ने पहले ही मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। अलीगढ़ में शराब पीने से 11 की यहां पर मौत हुई है। 2 जगहों पर यह मामले सामने आए हैं। शराब से मौत का दूसरा मामला भी सामने आया है। दूसरे मामले में शराब से 3 की मौत हुई और कुल यह आंकड़ा 11 तक पहुंचा है। सवाल यहां पर यह, और बातचीत करने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है, गांव के लोग क्या बता पा रहे हैं, कहां से शराब आई थी और अब तक क्या आंकड़ा है? जी देखिए अनुपम, बिल्कुल जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं चौथा एक व्यक्ति जिसने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। हालांकि पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत का कारण क्या रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो उसके परिजनों ने बताया है, परिजनों का कहना है कि शराब पीने से उनकी मौत हुई है। हालांकि अभी एक आदमी जो है उसने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है और वो व्यक्ति अभी उपचाराधीन है और उसका उपचार चल रहा है। जी अनुपम, बिल्कुल। हाँ प्रशांत, आपके अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या कोई एक्शन अब तक लिया गया, कोई कार्रवाई की गई है? जी अनुपम, लगातार अधिकारियों से बात चल रही है और अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि जो है सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगातार छानबीन की जा रही है कि किस ठेके से शराब खरीदी गई थी। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि इस ठेके पर लगातार शराब बेची जाती है और समय का कोई जो है पालन नहीं किया जाता। किसी भी प्रशांत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रशांत कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। यूपी सरकार के प्रवक्ता और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि सीएम योगी ने अलीगढ़ में शराब से मौत मामले में फौरन संज्ञान लिया है और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये इस प्रकार की कोई भी घटना आती है तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी
और सरकार इस पर कार्रवाई करती है और कठोर कार्रवाई करती है। उस पर NSA भी लगता है, पूर्व में भी देखा गया है। और जो क्षतिपूर्ति भी होती है वो भी उन लोगों के माध्यम से, उनके जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों से पूरी करी जाती है। तो इस पर कार्रवाई फिर होगी और कार्रवाई के साथ उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। जो भी कानून है उसके तहत उन लोगों को बुक भी किया जाएगा। और बातचीत करेंगे अलीगढ़ में हमारे संवाददाता सुमित शर्मा से, लेकिन जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक मौतों का आंकड़ा 11 हो गया है। एक जगह पर 8 मौतें हुई हैं, दूसरी जगह पर 3 मौतें हुई हैं और लगातार आपको बता दें कि प्रशासन जो है वो कार्रवाई की बात कर रहा है। सुमित बने हुए हमारे साथ। सुमित, क्या अपडेट्स आपके पास है? कहां कहां पर ये मौतें हुई हैं और फिलहाल गांव में कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हुए हैं? देखिए अनुपम, आपको बता दूं, अलीगढ़ जनपद के 2 थाना क्षेत्रों में, पहला थाना की अगर हम बात करें, थाना लोधा क्षेत्र है जिसके 3 गांव हैं, करसुआ है और बाकी के 2 गांव हैं। वहां पर लगभग अब तक जो जिला प्रशासन ने पुष्टि की है 8 लोगों की शराब पीने से मौत हो चुकी है। अभी जो हम बात करते हैं, एक थाना जवा पड़ता है, जवा क्षेत्र में चलेरा एक गाँव है, वहाँ पर 3 लोगों की और मृत्यु की बात सामने आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने प्रथम दृष्टया ये बताया है कि प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि इनकी भी मृत्यु शराब पीने के कारण ही हुई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। अभी हम यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं, यहाँ पर आला अधिकारियों का आना जाना लगातार जारी है। क्षेत्र के सांसद राजवीर दिलेर अभी गांव में पहुंचे थे, परिजनों से मुलाकात की है, थाने पर सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है। जब हमने सांसद जी से जब बात की तो सांसद जी ने बताया है कि पूरे प्रकरण में मैं लगातार मुख्यमंत्री जी के टच में हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर रहा हूँ। इस पूरे प्रकरण में जो भी लापरवाह कर्मी होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी अगर हम गाँव में मौजूद है, गाँव में परिजनों से बात करते हैं, जो गाँव में छेरा गांव में जो 8 लोगों की मृत्यु हुई है पूरे क्षेत्र में, उनके परिजन यहां मौजूद हैं। परिजनों से जानकारी करेंगे कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई है और किन किन लोगों की इसमें लापरवाही सामने आई है। क्या नाम है आपका? कुशलपाल जी। कुशलपाल जी, आप जो मरने वाले हैं, आप उनके कौन हैं? मैं उसके पड़ोसी भाई हूँ। क्या किस तरह से ये शराब मामला हुआ है? ये मामला हुआ है साहब, ये ठेके से दारू आई, सरकारी ठेके से। सरकारी ठेके से कब लेके आए थे? ये शाम लेके आए हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ है? तो सुनने के बाद इन्होंने पीने के बाद 12 बजे करीब इसकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होते ही फिर इसको हम अस्पताल लेके भागे, रास्ता में इसकी मृत्यु। और क्या और कितने लोग बीमार हुए थे इससे? जितने लोगों ने दारू पी है सभी लोग बीमार। बताया जा रहा है कि अब तक 5 या 6 तो खत्म हो चुके हैं। गाँव में अब तक कितने लोग? 4 लोग खत्म हो गए वहाँ प्लांट पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, क्या मैं इसका मामा हूँ। क्या मामला हुआ और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है जी कि मतलब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, उनके लिए कुछ मतलब देंगे और आपके साथ हैं। हम बोल के तो कुछ नहीं गए कि कितना देना कितना नहीं मांग देना। करते हैं आप माननीय मुख्यमंत्री से? क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से और केंद्र सरकार से हम तो ये चाहते हैं कि इन बच्चों की तरफ देखें और इनकी कैसे परवरिश होगी। कम से कम 15-20 लाख रुपए का तो इन बच्चों के लिए हो, इससे कुछ अपना गुजारा हो इनका और रोजगार चले इनका। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुग्गी चला करके इनके पिताजी पेट भरते थे और कोई साधन नहीं है पूरे घर में। देखिए अनुपम, जिस तरह से साफ तौर से गांव के लोगों का कहना है, ये है बड़ा बच्चा, देखो बड़े से। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बच्चा है सामने जो तस्वीरों में जो बच्चा दिखाई दे रहा है, ये एक जो मृतक है महेश, ये उनका बेटा है, लगभग 8 साल का है ये। और इनके पिताजी गांव के लोगों से जानिए आप, क्या इससे पहले भी इस गांव में इस तरह से शराब को लेकर के मामले सामने आए हैं या पहली बार इस तरह से ये घटना हुई है? क्या लोग बता पा रहे हैं कि अवैध शराब का उस गांव में धंधा होता है? देखिए, क्या आप ये बताइए, इस जो कांड हुआ है इससे पहले भी कई लोगों की क्या जान गई है शराब की वजह से यहाँ पर गाँव में? क्या यहाँ पर नकली शराब बिकती है या शराब बनाई जाती है गाँव के आसपास कहीं? हाँ जी, यहाँ बनाई जाते हैं और बिकते हैं। कहाँ बनाई जाती है? यहाँ ठेका ही है। तो क्या इसकी जानकारी प्रशासन या पुलिस के अधिकारियों को थी पहले? नहीं, सब यह बातें नहीं थी। तो जो शराब बनाने वाले हैं, क्या उनकी प्रशासन से मिलीभगत मानी जा सकती है? हाँ जी, प्रशासन। और आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए अनुपम, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जिनके परिवार से भी कुछ लोगों की जहरीली शराब की वजह से जो मृत्यु हुई है। हम उनसे जानकारी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुषमा नाम है मेरा। आपके परिवार में से मेरा भाई गया 30 अप्रैल को दारू से। मतलब दारू कहाँ से लेके आए थे? ये गाँव में बिकती है।
सरकारी गाँव में ठेके भी थे ना? ठेके से भैया यहाँ पे गैस प्लांट के पास। तो ये जहरीली शराब कहाँ से आ गई? हमें क्या पता कहाँ से आ रही है, पीने से और अपना गाँव में बिक रही है कच्ची पक्की जैसे मिले उससे पी के। क्या वही बनाई जा रही थी शराब या कहीं से? ये पता नहीं, हमें नहीं मालूम इस चीज के लिए कहाँ से आई। पर आपका नाम क्या है? मेरा लक्ष्मी नाम है। आपके परिवार में से किसकी? मेरा भाई है, हम दोनों बहन है ना। कब हुई है मृत्यु? अभी 30 अप्रैल को हुई है। किसी ने नहीं ऑप्शन उठाया है। उसकी 3 बेटी हैं, कोई चारा नहीं है, नौकरी है ना, पैसा है ना, खेती है ना, बाड़ी है, कुछ नहीं है। क्या काम करते थे वो? बाकी वह खेत लेता था और करता था, किसान आदमी था। देखिए अनुपम, साफ तौर से गांव की महिला और जो गांव के लोग हैं, जो परिवारी जन है, उनका साफ तौर से कहना है कि ये बेहद ही गरीब लोग थे जो डेली प्रतिदिन अपना जो है रोजगार पाते थे और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। खेती पर बिल्कुल सुमित, अगर महिलाओं से हो तो जानिए क्या जिस तरीके से शराब के दुकानों पर या शराब के ठेके पर जो जानकारियां इलीगल काम भी होता था, क्या वहां पर अवैध तरीके से शराब बनती थी? जो लोग शराब खरीदने जाते थे, कभी कोई अफसर वहां पर जांच करने के लिए आया? कभी कोई अधिकारी गांव में आया? कभी किसी ने कोई जांच पड़ताल वहां पर की? जी बिल्कुल अनुपम, हम बात करते हैं। ये बताइए, आप जो है ये जो शराब का ठेका है वो आपके घर से कितनी दूर है? कम से 1 किलोमीटर। क्या आपने कभी देखा है कि वहाँ कोई अधिकारी आते थे कभी जांच करने के लिए? कभी नहीं आए। पुलिस वाले इसमें मिले हुए थे, किसी ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। और लोकल के थाने वाले लोग मिले हुए थे? हाँ, अगर एक्शन लेते पता नहीं है, लेकिन एक्शन लेते तो शायद आज ये कांड नहीं होता। अच्छा, तो क्या आपने कभी ये देखा है कि ठेके पर कभी आपने सुना हो कि क्या वही नकली शराब बनाई जाती थी या नकली? नहीं, ये हमें पता नहीं है, बनाई जाती है, दारू से हुई है। दारू से आपको क्या आशंका लग रहा है, जो ठेके से शराब खरीदी गई है उसी को पीने से मृत्यु हुई है? हाँ जी, और कहीं से, क्योंकि जिस दिन टाइम खत्म हुआ था उसके 4 पौवा उसमें जेब में निकले थे। क्या वो शराब जहरीली थी? हाँ जी, बिल्कुल से खत्म हुआ है, पूरा नीला पड़ा हुआ था, जैसे ये लोग नीले पड़ के खत्म हुए हैं, जैसे उसी तरीके से। अधिकारी जो यहाँ के अलीगढ़ जनपद के जो अधिकारी हैं वो आपसे मिलने आए थे? कोई नहीं आया। क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए? सतर्क हुए खड़े हुए। आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? आप कार्रवाई ये चाहते हैं भैया, उनकी रोजी रोटी का कोई वो बन जाए। उनकी 3 लड़कियां, बेटी है, भाभी है मेरी एक है, उसका कोई नहीं है, धनाधोरी न ऊपर है। एक उसकी माँ है, वो भी 2 साल पहले उसके पापा खत्म हो चुके हैं भैया, नहीं है उसके पास आज भी, दारू के चक्कर में चला गया भाई हमारा। देखिए अनुपम, साफ तौर से गांव के लोगों का ये कहना है कि पूरा परिवार लगभग खत्म होने की कगार पर है। परिवार को आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ज्यादा खराब है। ये प्रशासन से, ये मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि परिवार के कौन ये ठेकेदार है? कौन है ये ठेकेदार? क्या गांव का ही कोई व्यक्ति ये शराब बेचता है? किसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि गांव के लोग उसको जानते हैं? किस तरह की उसकी छवि है, उसके बारे में कुछ जान पाए तो आप जानिए जरा। कंपनी की गलती है। अनुपम, बिल्कुल बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुशल पाल जी। कुशल पाल जी, ये जो ठेका है, जो ठेके के जो चलाने वाले संचालक हैं, क्या वो इसी गांव से हैं? नहीं। किस गांव के? बाहर के। कहाँ के हैं? जानकारी है कुछ? नहीं, जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। क्या इस पूरे मामले में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव कवरेज पहुंचाने के लिए। सुमित हमारे साथ अलीगढ़ में मौजूद है, जो पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल अलीगढ़ की बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 लगातार बना हुआ है। जिम्मेदारों से सवाल भी हम खड़े कर रहे हैं और इस पूरे मामले में क्या एक्शन होता है ये भी अब देखना होगा। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।